Hello students, today we'll start a new topic, electric field lines or electric force lines. Okay, this is very important topic, and the concept of electric field lines, first of all, given by Faraday. Okay, Faraday says that each vector field can be represented by vector lines. Okay, and these lines are known as field lines. Okay, so we will discuss in detail here and their properties. Okay, and field lines are very important concept to solve problems, difficult problems easily. Okay, and on the basis of field lines we discuss for in next chapter Gauss's law, which is very important to solve difficult problems, which is very hard if we solve by the Coulomb law. Okay, so see carefully my videos and subscribe my YouTube channel more and more, like, share and सब्सक्राइब. ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम अनदर नेम से जानते हैं, बट मोर फेमस नेम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, बट जो मोर एक्यूरेट नेम है इसका वो आपका होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस. ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इसके डेफिनेशन लगते हैं, क्योंकि हम काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको हेल्प करेगा. कंसेप्ट. ओके, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है ये देखिए सबसे पहले. ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे, देखिए काफी फेमस नाम है फैराडे. यदि इसकी बात करी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, फैराडे. अकॉर्डिंग टू फैराडे, each vector field may be supposed to be formed of vector lines of force. ये फैराडे ने कंसेप्ट दिया था, और ये इसी के लिए, हर फील्ड के लिए, हर वेक्टर फील्ड के लिए. ओके, वेक्टर फील्ड मींस एक फील्ड है, एक रीजन है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. ओके, नाउ वी नो दैट a charged particle placed in an electric field experiences a force
an electric force if the positive test charge, एक कंसेप्ट है आपका, ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ नोट करना है. इफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed in an external electric field where free to move, okay, sorry, free to move, then it would move along the direction of force, okay. In case of positive charge, direction of electric field and the direction of electric force both are same. तो हम यहां कह सकते हैं move along the direction of force or electric field. So here we say electric field lines or electric force line. तो इसलिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फील्ड लाइंस बोलिए या फोर्स लाइन. देखिए दोनों डेफिनेशन आपकी, दोनों नेम सही है, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके. बट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and the direction of field lines are different. Magnetic field. So in that case of magnetostatics, we cannot say magnetic field lines or magnetic force lines are same, okay. Where has different meaning, but here both are same, field lines and electric force in case of positive test charge, okay. Remember this point, which is very important. Now direction of electric force acting on it, ठीक है, acting on it, क्लियर ना. तो एक पाथ ट्रेस करेगा जब ये मूव करेगा, then the path of motion of positive test charge the path of motion of positive test charge placed in external electric field freely, मतलब फ्रीली पुट किया गया है, प्लेस दिया, यहां पर यूज कर लीजिए इस वर्ड को, freely in external electric field, then electric field is known as electric
line of force. ओके, और ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स. If the direction of electric force on the positive test charge, on the positive test charge change continuously, then the direction of motion of test charge will continuously change then the direction of motion of test charge will continuously change and traces a और ये कह सकते हैं then the path of test charge will be a curve, ओके. सो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे काफी डीपली होंगे और पॉइंट उसमें डिस्कस किया जाएगा और इन शॉर्ट में बाद में उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई जाएगी. सो केयरफुली देखिए क्योंकि फिजिक्स कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकता. ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट देखिए. अकॉर्डिंग टू फैराडे ने कंसेप्ट दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो कूलम्ब्स लॉ से काफी डिफिकल्ट थी. उसके लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड थी वो अब हमारे पास बहुत डिफिकल्ट थी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि जो भी आपका फील्ड होगा, ठीक है, जो भी वेक्टर फील्ड होगा उसे हम फील्ड लाइंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट. उसके पीछे कंसेप्ट क्या था देखिए. ईच वेक्टर फील्ड में बी सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ वेक्टर लाइंस. हम ये मान सकते हैं कि जो आपका वेक्टर फील्ड है वो कुछ वेक्टर लाइन से मिलकर बना हुआ है. और वे लाइंस किसकी है, फोर्स की. क्योंकि जब आप फील्ड में किसी पार्टिकल को रखते हो, उससे इफेक्टेड जो उसके साथ इंटरेक्शन करता है तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स के कारण वो मूव करता है. और उस फोर्स के कारण जो उसकी मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट से एक पाथ ट्रेस होता है. एक पाथ क्या होता है, ट्रेस. और जो पाथ ट्रेस होता है कर्व्ड शेप का, यदि कंटिन्यूअस मोशन है तो जो पाथ ट्रेस होता है उस पाथ ही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस. क्योंकि यहाँ पर फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड में बी सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, वी नो दैट ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. दूसरा कंसेप्ट यहाँ देखिए कि हम जिस फोर्स की यहाँ चार्ज की बात करते हैं वो चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर वर
फ्री टू मूव, जहां पर वो मूव करने के लिए क्या है, फ्री, कोई आपने उस पर बाउंडेशन नहीं लगाई गई है, देन इट वुड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ एक्टिंग ऑन इट। चलिए अब यहां पर देखिए, इट then the path of motion of the positive test charge, then the path of motion of positive test charge placed freely in external electric field is known as electric line of force or electric force lines। okay, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मेनली बोलते हैं, बट यहां पर देखिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चेंज कंटिन्यूअसली, क्योंकि यदि मान लिया फील्ड आपका कंटिन्यूअस है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो आपका चार्ज भी कंटिन्यूअसली मूव करेगा, और जब कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म करके एक कर्व शेप बनाएगा। तो कर्व शेप जो बनेगी आपकी, देन द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी कर्व। तो जो कर्व शेप है यही आपका क्या है, फील्ड लाइंस है या फोर्स लाइंस है। आप दो लाइन में हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, ये आपका कंसेप्ट है, आपको इसे माइंड में कंसेप्ट को रखना है, याद नहीं करना है। ओके, सो नाउ वी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी, जब डेफिनेशन की बात करेंगे हम इसकी, तो डेफिनेशन में देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट जनरली मोर एक्यूरेट नेम क्या आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है, लाइंस या लाइन कह दीजिए, इन एन एक्सटर्नल electric field is that path is that इमेजिनरी, एक वर्ड यूज करेंगे यहां पर, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, क्यों यूज किया गया बताएंगे। स्मूथ कर्व along which any positive test charge moves, या ऐसा लिख दीजिए, tends to move। ओके, tends to move। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व। इमेजिनरी इसलिए कहा गया है कि जब इन फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ करोगे तो वो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहां पर लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फील्ड का, वो तो ओवरऑल रीजन में है कंटिन्यूअसली, बट फील्ड लाइंस तो आप कंटिन्यूअसली बहुत सारी नहीं खींच सकते, आप कुछ चूज करोगे फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि इमेजिनरी है कि आपको कहां पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इमेजिनरी स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व मतलब कंटिन्यूअस कर्व होगा along which any positive charge tends to
मूव। ओके, नाउ ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन लेवल के से भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहता हूँ, उसे आप एनालाइज कीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सपोज कर लीजिए इस पर चार्ज की अमाउंट इतनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट चार्ज है, आपको इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। क्लियर है ना? तो जनरली आप चाहे इस तरह बना दीजिए, चाहे यहीं पर एक डॉट लगाकर इसे पॉइंट दिखा दिए, बट ये मैंने सपोज कर लिया कि आपका एक क्या है, पॉजिटिव, या ऐसे ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव। कहीं पर भी देखिए, आपको दिखाना तो होगा ही, क्योंकि यदि मैं कहीं पर भी ऐसे पुट करूँगा तो थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अब आप बताइए, आपको इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक टेस्ट चार्ज क्या करना होगा, कंसीडर, जो कि पॉजिटिव। सपोज कर लीजिए कि आप यहां पर फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। तो इमेजिनरी क्यों कहा, क्योंकि आप डिसाइड करोगे आप कहां पर ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लिया आप यहां पर करना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लीजिए। और वो टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करने का मतलब हुआ कि जो आपका फोर्स है वो आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना? तो इस पॉइंट पे वो इधर को होगा, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को। तो इस तरीके से आपकी एक लाइन यहां पर बन गई, जिसके अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, किस पर लगने वाला, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। तो यही डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन एक कर्व से शो हुई ना, ये जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो यही कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब लाइंस की बात करें, मुझे मान लिया कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पर भी इधर। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो आपको यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ कर दी। एक सिमिलरली इधर खींचिए, एक आपको फील्ड लाइन इधर मिलेगी, एक आपको इधर मिलेगी। क्लियर है? अब आप देखिए, आपने 4 फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की। इस केस में 4 लाइंस है यहाँ आपकी, कितनी है, 4 लाइंस। अब आप कर सकते हो कि आप यहाँ पर 4 लाइंस लोगे, 8 लाइंस लोगे, या 12 लोगे, 10 लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। बट ऑलवेज कुछ ऐसा अरेंजमेंट लिया जाता है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि फील्ड लाइंस ओवरऑल रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आई बात समझ ना? तो यहाँ पर देख क्लियर हो गया हो कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनसे फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है। क्लियर है ना? अब देखते हैं, कोई आर्बिट्रेरी सोर्स लेते हैं, अनदर जो निगेटिव है। तो ये ले लीजिए, आपके पास एक निगेटिव चार्ज है, ये इतना ही लिया मैंने अमाउंट में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितना फील्ड ये वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा उतनी स्ट्रेंथ का फील्ड ये वाला चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों पर चार्जेस क्या है, सेम। तो क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स सेम डिस्टेंस पर आपका सेम चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जितना फील्ड इस पॉइंट पर इसने डेवलप किया, इतना ही फोर्स फील्ड यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा, बट डायरेक्शन में भी डिफरेंट। तो चलिए, इसके कारण हमें क्या करना है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे आप देखिए टेस्ट चार्ज कंसीडर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि आपको फाइंड करनी है तो आपको फोर्स कंसीडर करना, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। फोर्स की डायरेक्शन यदि आपको फाइंड करनी है तो आपको एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये उसे अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड। कैसे होगी, इनवर्ड होगी ना। तो इनवर्ड होगी तो इस प्रकार देखिए, आप कहीं भी पॉइंट पर कंसीडर कीजिए, आपका फोर्स इनवर्ड होगा। उन सभी पॉइंट्स को आप जब मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर भी आपका टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर की ओर होगी। यहाँ पर आ जाइए, इस तरह यहाँ पर भी अट्रैक्ट करेगा, फील्ड लाइंस आपकी इधर की ओर होगी। यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर भी अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। अब आप देखिए, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, एक निगेटिव चार्ज था, दोनों आपके पास यहाँ पर फील्ड लाइंस, आपने इसके लिए 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ की।
तो देखिए यहाँ पर यदि आपके पास ये है, सेम चार्ज के लिए यदि आपने 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ की, तो यहाँ पर आपको सेम चार्ज के लिए 4 फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होगी। ओके, क्योंकि फील्ड लाइंस की जो नंबरिंग है वो स्ट्रेंथ को शो करती है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उसकी स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी फील्ड की। ओके, तो यदि आप यहाँ पर इसे 2E कर देते हैं तो इसकी फील्ड लाइन देखिए यहाँ पर डबल स्ट्रेंथ की हो जाएगी, 2E आ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपेरिजन में डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फील्ड लाइंस की नंबर भी डबल करनी होगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस की जो नंबर्स है वो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे गॉसिस लॉ में, जिसे नाम दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके, तो आई थिंक मुझे लगा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, कुछ नाम दिया जाएगा इन्हें। यहाँ पर देखिए फील्ड लाइंस जो आपकी आउटवर्ड है, फ्लो हो रहा है, और यहाँ इनवर्ट फ्लो, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, देने की है, और वहां पर उसकी क्या है, लेने की। और जो चीज हमें कोई चीज देती है या हम उससे लेते हैं तो चीज हमारे लिए कहलाती है सोर्स। ठीक है, और जो चीज लेती है, है ना, जो चीज लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं, आपने देखा होगा जो रसोई होती है, रसोई में एक बर्तन धोने के लिए पोर्ट सा होता है, टंकी होती है, तो जो पोर्ट नीचे रहता है बर्तन धोने का, उसे हम बोलते हैं सिंक। तो सिंक की प्रॉपर्टी होती है लेने की। तो हम ये कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव चार्ज इज ए सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज इज ए सिंक। ओके, दैट इज in electrostatics first positive charge is a source, second is a sink। ओके, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करते, वहां पर बात करते हैं हम एज ए सोर्स, कि हमारे पास एक सोर्स है, एक सोर्स पॉइंट है, एक फील्ड पॉइंट है। तो कुछ इस तरीके से कहा जाता है, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं वो होता है फील्ड पॉइंट, और जहां पर हमारा चार्ज होता है वो होता है हमारा सोर्स पॉइंट। ओके, नाउ सिमिलरली इफ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2E, तो ड्रॉ कीजिए जरा। तो एक फील्ड लाइन आपकी ये हो गई, एक फील्ड लाइन आपकी ये हो गई, एक फील्ड लाइन ये हो गई, एक फील्ड लाइन ये हो गई, और इसके कंपेरेबल इसकी स्ट्रेंथ इससे डबल होगी। तो डबल में इतनी, यदि 4 लाइन से इसे रिप्रेजेंट किया गया तो यहां पर कितनी लाइंस होंगी, 8 लाइंस। ये देखिए, हो गया ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी कह सकते हैं और आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं, कि आप चूज करेंगे कि आपको कहां पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, यदि आप पॉइंट यहां पर लोगे तो फोर्स यहां पर भी होगा, यहाँ इस तरह कंटिन्यूस हर पॉइंट पे फोर्स है। तो इस प्रकार ये नहीं कह सकते कि एक ओवरऑल पूरी सरफेस कवर्ड हो जाएगी, क्योंकि फिर उस कंडीशन में तो ये होगा कि आपका जो फील्ड है वो सबका क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इसलिए ये एक आर्बिट्ररी और इमेजिनरी कंसेप्ट है, बहुत हेल्पफुल है स्टडी करने। अब एक तो कंक्लूजन ये निकल गया, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। मेन जो प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है तो उन्हें करते हैं। रिमेंबर रखिए, देखिए मेरे लेक्चर्स काफ़ी लेंथी रहते हैं और मैं बेसिक तक कोशिश करता हूं कि आपको कंसेप्चुअली सिखाया जाए 0 to हायर लेवल तक। बट इफ यू एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती है, कमेंट कीजिए जरूर, क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलती है वीडियोस अच्छे से अच्छी बनाने की। ठीक है, तो चलिए, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं आई है बच्चों की, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप जरा और कमेंट कीजिए इन टॉपिक्स पर, कैसी वीडियोस आपको अच्छी लगती है और किस लेवल की वीडियोस आपको लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज properties. Okay, now we discuss properties of electric fields.
क्लियर है ना। तो नाउ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1, द इलेक्ट्रिक मैंने आपको पहले कहा है कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस appear to start from positive charge, from positive, क्लियर है ना। यही तो टॉपिक बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज, एंड टू टर्मिनेट at नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और नेगेटिव चार्ज में क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है। क्लियर है ना। चलिए सेकंड पॉइंट, चलिए अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the electric field lines do not intersect to each other। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए यदि आप एक चार्ज की फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो और फिर एक दूसरे टेस्ट चार्ज की लाइंस ड्रॉ करते हो और दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो आपकी जो फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सोर्स यहाँ पर है प्लस, एक सोर्स यहाँ पर है माइनस की, सपोज कर लीजिए, और यदि आप इसके कारण यहाँ फील्ड लाइन से कंसिडर होगी और यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी, तो ये ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइंस आपकी क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि यदि इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज होगा वो इसके फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा और इसके फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। तो अब आप बताइए कि एक पार्टिकल दो फोर्सेज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या वो दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है? कभी नहीं। तो इसलिए ये दोनों फील्ड लाइंस आपकी कंबाइन होकर एक सिंगल फील्ड लाइन फॉर्म करती है, जिसके अलोंग आपका जो चार्ज है वो मूव करता है ड्यू टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड द रीजन ऑफ दिस थिंग इज दैट because if they do so, if they do so, then two tangents can be drawn at the point of intersection,
section which would mean two directions of electric force at that point, and which is impossible two directions of electric force at that point which is impossible. Okay, so electric field lines or force lines are do not intersect each other. देखिए एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है. क्लियर? ओके. अब आप देखिए कि आप यहां से आपकी फील्ड लाइंस निकलेगी और यहां से इसमें एंटर करेगी. आप यहां पर देखिए कि इस पॉइंट पर आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है. तो ड्यू टू दिस टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा? रिपेल. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर पाथ हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? अब आप कंसीडर कीजिए इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट ये हो गया. इसी प्रकार ये आगे जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला इसे इधर करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट. तो इस तरीके से यहाँ पर आप आओगे तो ये वाला आपका इधर करेगा और ये वाला इधर. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज होगा इधर से निकलेगा और इधर क्या करेगा? एंटर करेगा. तो इस तरीके से आपका जो रिजल्टेंट पाथ है स्ट्रेट लाइन से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कर्व में. तो यहां से आपकी फील्ड लाइंस निकलेगी इस तरीके से. तो यहां से आपकी फील्ड लाइन निकलेगी इस तरीके से. चलिए, है ना? तो अब आप इस तरीके से देख लीजिए. इधर एंटर करेगी ये हो गया आपका. ये आपका फील्ड लाइंस हो गई किसके लिए? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के लिए कंबाइन फॉर्म में. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. And try to draw the electric field lines for plus Q and plus Q charge, same like charges. Okay, now we will study next point. Point number 3. Point 3 is the electric field lines. The electric field lines do not form any closed loop or curve. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी वो कभी भी एक क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती है. क्लियर है ना? ओके, तो देखिए कभी क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करेगी यानी क्लोज कर्व. तो ऑलवेज कैसा होगा?
आपका ओपन कर्व होगा, आप देखिए किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए देख ले, चाहे नेगेटिव चार्ज के लिए देख लीजिए, ठीक है नहीं। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक पॉइंट आपको पढ़ाया नहीं गया है तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always परपेंडिकुलर या नॉर्मल कह दीजिए, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऑलवेज ध्यान रखिए, चाहे कंडक्टर आपका किसी भी शेप का है, उस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एंड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये पॉइंट आपको पढ़ाया नहीं गया है कि यदि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो उस पर भी ऑलवेज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसी होती है, नॉर्मली होती है। नॉर्मली आपकी बाहर निकलती है या नॉर्मली इसमें क्या करती है, एंटर करती है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक। अब आप देखिए लास्ट पॉइंट, फिफ्थ। देखिए जब हम बात करते हैं फील्ड लाइंस की, वेक्टर फील्ड्स की, तो देखिए कोई भी फील्ड यदि बात करें किसी भी चीज का, यदि डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप बात करें कि जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो आपका ओवरऑल रीजन है, आपके अराउंड सराउंडिंग्स है, उसमें हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर ऑल पॉइंट्स पर आपका क्या है, कंटिन्यूसली वेरी है, ठीक है। तो आप देखिए यदि वो टेम्परेचर ओवरऑल रीजन में आपका कांस्टेंट है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केलर फील्ड। और यदि आपका टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है तो उस कंडीशन में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केलर फील्ड। तो यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म कब होगा, जब फोर्स आपका सेम अमाउंट में लगेगा हर पॉइंट पर, ठीक है नहीं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, हम ये कह सकते हैं एनालिटिकली कि हम फील्ड लाइंस की नंबर से शो करते हैं, जैसा आपको बताया गया। तो यदि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी ओवरऑल रीजन में सेम होगी, और क्योंकि वेक्टर की बात करें तो इसलिए डायरेक्शन भी आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड वो होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सेम हो और सभी फील्ड लाइन सेम डायरेक्शंस में मूव करती हो, ट्रेसिड हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट। द इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents the uniform electric field, while non-equidistant
while the electric field lines at different separations represent non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखें कैसे, यहां पर देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई कंडक्टर है और इस पर चार्ज इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट भी याद रखिए, आपकी जो चार्ज का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी कंडक्टर में, तो वो सिर्फ हमेशा सरफेस पर होता है, नॉट इन वॉल्यूम। ओके, तो अब आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब एक सोर्स की तरह काम करेगा, फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड होगी, है ना। तो इस कंडीशन में आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो फील्ड लाइंस ड्रॉ आप कैसे करेंगे, ये देखिए, ऑलवेज आपकी जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए जनरली बिल्कुल सही तो नहीं हो सकता, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा। ये ऑलवेज आपकी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस। ये अपने आप इस तरह सेट करता है अपनी प्रॉपर्टी को कि किस तरीके से नॉर्मल की जाए। तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज ये सही तो है नहीं, क्योंकि मेरा जो मेथड है यहाँ पर दिखाने का, वो दिखाना चाहता हूँ कि ऑलवेज क्या होगी आपकी, नॉर्मल। ये अपने आप डिसाइड करेगा अपनी फील्ड लाइंस को अपनी शेप के तरीके से कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करे। आप देखिए दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन तो आपने ले ली है, ये हो गया आपका सेपरेशन सेम है ना, तो यहां पर देखिए सेपरेशन सेम है और डायरेक्शन भी आपकी क्या है, सेम। तो इसलिए ये क्या करेगा, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड थिंग की। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि डायरेक्शन तो आपकी डिफरेंट है, इधर देख लीजिए, डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम है, बट इनके बीच का जो सेपरेशन है आपका वो चेंजेबल है। तो यहां पर आप देखिए जो सेपरेशन है वो डिफरेंट है, इसलिए कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसी केस में आप देखिए कि मान लीजिए आप इस तरह की फील्ड लाइंस ले लीजिए, देखिए इक्वी डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंट है, ये फील्ड लाइंस आपकी इक्वी डिस्टेंट है, बट यहां से जैसे ही आप इस पॉइंट पर जाओगे आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तो डायरेक्शन चेंज होते ही आपकी वैल्यू चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है, चलिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट आपकी क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, तो आप, मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और आपकी समझ में आ गए होंगे। काफ़ी लेंथी मैंने समझाया आपको, तो यदि आपको वीडियोस ज़्यादा लंबी लगती हो तो कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। बट बेसिकली यदि आप कंसेप्ट से आप समझना है तो फिजिक्स आपकी कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू।